Assalamualaikum. Dear students, I am your instructor, Narjis. Today we are going to start a new lecture, lecture number 10. In the previous lecture, we talked about adolescent period. कि adolescent period में हम किस तरह कौन-कौन से disorders का शिकार होते हैं. Eating disorders की बात की, bulimia nervosa, anorexia nervosa. इस पर हमने suicide की बात की. Adolescent वो period है जिसमें suicide rate और suicidal attempts सबसे ज्यादा होती है. ये वो period होता है जब बच्चे बहुत से conflicts का शिकार हो जाते हैं कि उनको societal norms को follow करना है, ये वो जो उनके नजदीक ठीक है. इस एज में बच्चों के ऊपर जो पीयर्स का प्रेशर होता है बहुत ज्यादा होता है. वो पेरेंट्स ज्यादा पीयर्स की बातें ज्यादा गौर से सुनते हैं और उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये वो स्टेज होती है जहाँ उनकी अपनी सोच डेवलप करती है और वे सोचते हैं कि उनको उसके मुताबिक एक्ट करना चाहिए जो उनकी सोच है, ना कि सोसाइटल नॉर्म्स के. समटाइम्स सोसाइटल नॉर्म्स जो होते हैं वो अगेंस्ट जा रहे होते हैं, वो गलत होते हैं. इस एज में बच्चे उनको अपोज करते हैं. इसके बाद हमने बात की कि जो सोसाइटल अटेम्प्ट्स लोग करते हैं वो क्यों करते हैं. इसकी बहुत सी रीजन हो सकती हैं. असल में कई लोगों ने बात की सारे अटेम्प्ट्स होती है सुसाइड जो है वो अपने आप को तकलीफ देना है, ये मीन्स अपने आप को टॉर्चर करना है. इसके बाद हमने बात की कि बच्चे किस तरह डेलिंक्वेंसी डेवलप करते हैं. फिर हमने एड एंड बात की कि पेरेंट्स से किस तरह रिलेशनशिप डेवलप करते हैं. आज हम एक नई स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की इत्तला करते हैं और ये स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है अर्ली और यंग एडल्टहुड. Adulthood is a general term which covers a period of 21 years onward. Early adulthood is a period that generally ranges from 18 to 45 years onwards. Early adulthood को कई लोगों ने कहा कि इसकी रेंज जो है वो 18 से 45 साल. Adulthood जो है वो टर्म है that comes from the Latin word adults, which means to grow to maturity or to grow to full size and strength. Adulthood is generally divided into three different stages: early adulthood, middle adulthood, late adulthood. Early adulthood is 18 to 45 years, then middle adulthood 45 to 65 years, late adulthood 65 years till death. अब हम बात करते हैं कि अर्ली एडल्टहुड की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन-कौन सी हैं. Following are the important characteristics of early adulthood. Number 1, early adulthood is a period of adjustment to new patterns of life and new social expectations. People enter into marital relationship, job, etc. यानी early adulthood वो period है जिसमें हम न्यू पैटर्न्स ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करते हैं, जिसमें हमारे पे सोशल एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और डिफरेंट तरह की सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं. पीपल एंटर इनटू मैरिटल रिलेशनशिप्स, जॉब, यानी ये वो पीरियड होता है जब लोग एक नए रिलेशनशिप में बनते हैं, लाइक मैरिटल रिलेशनशिप्स, जॉब स्टार्ट करते हैं, कैरियर बनाते हैं. Early adulthood is a settling down age. During this period of career-free days are over. Settle down involves finding economic stability and a stable marriage partner. Early adulthood को हम सेटिंग डाउन एज भी कहते हैं. लाइक जो अर्ली एडल्टहुड जो हम पहले बताया कि 18 to 45 years होती है, ये वो स्टेज होती है जब आप शादी करते हैं, जब कैरियर बनाते हैं, यानी अब आपकी स्ट्रगलिंग डेज भी स्टार्ट हो जाते हैं जब आप सेटल डाउन हो रहे होते हैं. Early adulthood is a reproductive age also. Most individuals are for women in 23 to 29 years. Majority of them marry and conceive during this period. Then number 4 is early adulthood is a period of change of values. Many values acquired during childhood and adolescence change during adulthood. Many core values becomes consolidated. इसमें values भी change कर जाती हैं. हम ज़्यादातर society norms का ख्याल रखते हैं. Then number 5 is early adulthood is a stage of individualism and creativity. Adults like to maintain their individuality. They are not innocent conformists as children or blind followers of certain practices as they did during adolescence. Adults spend a considerable amount of their time in the pursuit of intellectual and creative tasks. अर्ली चाइल्डहुड वो स्टेज रहती है जब आप अपनी क्रिएटिविटी को फाइंड आउट करते हैं, जब आप में इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है. ये वो स्टेज रहती है जब इंसान अपनी अकल के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी क्रिएटिविटी के मुताबिक जो है वो अपनी सोच को डेवलप करता है. अर्ली एडल्टहुड इन्वॉल्व्स सर्टेन डेवलपमेंटल टास्क, सम ऑफ व्हिच आर एज फॉलोज. नंबर 1, सिलेक्टिंग अ मेट, यानी आपको अपने लिए एक मेट तलाश करना है. लिविंग टू लिव विद अ मैरिज पार्टनर, आपको अपना जो पार्टनर है उसके साथ रहना है. स्टार्टिंग अ फैमिली, आपको अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है. मैनेजिंग अ होम, एक घर को चलाना है. गेटिंग स्टार्टेड इन ऑक्यूपेशन, अपना कैरियर स्टार्ट करना है. टेकिंग ऑन सिविक रिस्पांसिबिलिटीज, और बहुत सी रिस्पांसिबिलिटीज को अडॉप्ट करना है जैसे कि सिविक. During the early childhood, the 20s and early 30s, the individual is at the peak of life biologically and physiologically. Individuals reach their peak of physical well-being during the years of early adulthood. This period is notable for being time of one's greatest strength and good health. Physical maturity in height and weight have been completed, and growth has ceased several years before early adulthood begins. Yet many changes occur in physical appearance and in the body's psychology over this period of time. Like जो effects of aging जो है वो आप easily उनकी weight और height पे देख सकते हैं. Height increase करती है और weight जो है वो भी increase करता है. Weight changes are more noticeable and significant than height changes during this period. The average weight of men है between 18 and 74 years is 172 pounds. Between 18 and 24 years, and average weight of men increased from 165 pounds to 178 pounds. Between 35 and 44 years, the average weight of women between 18 and 74 years is 143 pounds. This figure is 29 pounds less than that for men at the same age. The average weight for adult females should gain from 132 pounds between 18 and 24 to 149 pounds between 35 and 44 years. Difference जो है अब हम इस पैटर्न में देखते हैं वो रेस के साथ डिफरेंट हो जाता है. लाइक ब्लैक मैन जो होते हैं वैज कम्पेयर टू व्हाइट मैन के वो ज़्यादा वेट गेन करते हैं. उसमें ब्लैक वुमेन जो होती हैं वो ज़्यादा वेट गेन करती हैं इस पीरियड में. जिसमें रेसेस के साथ जो है वो डिफरेंट हो जाता है. लाइक आईज, मस्कुलर स्ट्रेंथ, टीथ. अब जो एबिलिटी है आईज की कि वो अकोमोडेट कर लें वो चीज़ें शुरू हो जाती है अर्ली एडल्टहुड में. अकोमोडेशन रेफर्स टू द एडजस्टमेंट्स मेड बाय द आईज फॉर सीइंग थिंग्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस और द एबिलिटी ऑफ द आईज टू फोकस प्रॉपर्ली एंड क्विकली. There is a gradual loss in the quickness of eyes to adapt for focusing objects until about the age of 45 when accommodation is at its lowest. Sharpness of vision is at its peak for most individuals in the years of early adulthood. Males have better average eyesight than females. Then muscular strength. The peak of an individual's muscular strength occurs between 20 and 30 years. After this, there is a continuous decline in strength that increases rapidly in the years of old age. Muscle strength होती है आदमियों की एक कंट्रास्ट करती है वर्क रेट के साथ. वर्क रेट जो है उसको हम कितना मेजर कर सकते हैं जितना वो कितना काम करते हैं. वाइल मसल स्ट्रेंथ होती है वो
20 और 65 में बहुत ज़्यादा चेंज आती है, यानी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, इसलिए ये भी वर्क के साथ साथ डिक्लाइन ही आता है इसमें भी। अब हम बात करते हैं टीथ की। इसके अलावा बात करेंगे हम हार्ट मसल्स की, लंग्स की, स्किन की, ये सब चीज़ों में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। Most individuals still retain of their permanent teeth during early adulthood. A small percentage have lost of all their upper or lower teeth. The loss of teeth is more likely to occur to women than to men. During this period, there is a steady increase in decay, missing, or filled teeth during the year of early adulthood. The probability of experiencing periodical disease also increases during early adulthood, especially for males. Periodical disease is an inflammation of gums and bones tissues surrounding teeth, which results from poor or improper denial hygiene. Young adults become careless in caring for teeth, with this condition often being the consequences. Periodontal disease can lead to loss of teeth if left uncorrected. जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसके हार्ट मसल्स भी वैसे वैसे जो है वो स्लैगिश होते जाते हैं, क्योंकि वो ब्लड को ठीक तरह से पंप आउट कर सके। इसीलिए हम देखते हैं कि इस एज में जो है हार्ट रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं। हार्ट जो है अर्ली एडल्टहुड में सफिशिएंटली ब्लड पंप कर सकता है। जब हम लंग्स की फंक्शन की बात करते हैं तो लंग्स की एबिलिटी भी चेंज हो जाती है विद टाइम। यंग एडल्ट्स होते हैं वो इस काबिल होते हैं कि 4.5 टाइम्स मोर वो एक ओल्डर एडल्ट से ऑक्सीजन जस्ट कर सकते हैं, और लंग्स जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी की एक्सरसाइज में और वर्क मसल्स प्रॉपर्ली। The decline in oxygen absorption partially can be traced to lowering of the amount of blood pumped through the lungs, as well as the losses in the mechanical efficiency of the lungs as people grow older. With adulthood years, there is a decline in the amount of air breath into the lungs. This difference is noticeable among many individuals at the age of 40. स्किन भी जो है उससे क्या इफेक्ट आते हैं। जब हम बात करते हैं अर्ली एडल्टहुड की तो स्किन भी कुछ साइंस शो करती है, इसलिए कुछ हार्मोनल चेंजेस आती है बॉडी में, स्पेशली आइज के साइड्स पे रिंकल आना शुरू हो जाते हैं। The skin begins to lose its fine texture towards the end of the period. जब 45 के करीब आता है तो जो फाइन टेक्सचर होता है उसको स्किन छोड़ रही होती है। While like in other related skin disorders are most frequent in adolescence. ये जो डिजीजेस आपको स्किन के एडोलेसेंस में होती है, लाइक मोस्टली जो एक्ने प्रॉब्लम होती है वो एडोलेसेंस में होती है। जब अर्ली चाइल्डहुड में आता है तो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लेकिन जब अर्ली चाइल्डहुड का एंड हो रहा होता है तो रिंकल आना शुरू हो जाते हैं, स्किन की फाइन टेक्सचरिंग वैसी नहीं रहती है, और बहुत से चेंजेस जो है वो स्किन पर आती हैं जो आपकी एज को रिफ्लेक्ट करती हैं। इंसान जो है उसकी कॉग्निशन भी विद पैसेज ऑफ द टाइम विद द एज इंक्रीज करती जाती है, उसकी कॉग्निशन मोर मैच्योर हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि एडल्टहुड में, अर्ली एडल्टहुड में आपकी सोच किस तरह डेवलप होती है, आपका थिंकिंग पैटर्न कैसा हो जाता है। एडल्ट थॉट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम चाइल्डहुड थॉट। There are three approaches to adult thought. Peter follows Piaget's views and post-formal thought, Warner's on adult thought, and Robert Sternberg. सबसे पहले बात करते हैं पियाजे की। पियाजे ने जो अपनी कॉग्निटिव स्टेजेस की बात की थी उसमें लास्ट थी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, लेकिन उसने कहा है कि एडल्टहुड में आकर जो थिंकिंग पैटर्न हो जाता है, जो मैच्योर थिंकिंग होती है, वो फॉर्मल ऑपरेशन से भी कुछ आगे है, उसको उसने पोस्ट फॉर्मल थॉट का नाम दिया। अब बात है कि डेवलप कैसे होती है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, जब हम इंटेंसिव होते हैं तो हमारी सोच का पैटर्न होता है, जैसे हम एज से बढ़ते जाते हैं तो हमारी सोच इंप्रूव होती जाती है। एडोलेसेंस में जब हम आते हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी होता है, मैच्योरेशन भी होती है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी इंटेलेक्चुअल फंक्शन में। लेकिन अब ये है कि जब इंसान अर्ली एडल्टहुड में आता है तो उसका एक्सपीरियंस इतना वास्ट हो जाता है कि हम ये देखना चाहेंगे कि एक्सपीरियंस कितना इफेक्टिव रोल प्ले करता है और परसेंटेज कितनी है उसकी, तो इट्स क्वाइट टफ टू एनालिसिस। क्योंकि इंसान का एक्सपीरियंस इतना डाइवर्सिफाई हो जाता है, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो कितना इफेक्ट कर रहा है ये डिफाइन करना मुश्किल है। लेकिन जब बचपन में हम होते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो सिर्फ स्कूल तक होता है, घर तक होता है, लेकिन विद द पास ऑफ टाइम हम डाइवर्सिफाई करते हैं अपने एक्सपीरियंस में, इसलिए बहुत मुश्किल है कि हम रियलाइज कर सकें अपने एक्सपीरियंस के इफेक्ट्स हमारी कॉग्निशन पे। विद मैच्योर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू पियाजे इट्स समथिंग स्टेप फॉरवर्ड देन the formal operation. Thought in adulthood is flexible, open, adaptive in new ways that go beyond logic. It is sometimes referred to as post-formal thought. फिर हम कह रहे हैं कि there is a shift in mature thought as a result of thinkers combine both objective element, logical, rational, and as well as a subjective element, like your personal experiences. This shift helps people take their own feelings and experiences into account. Mature thinkers personalize their reasoning using the fruits of their experience when they are called on to deal with ambiguous situations. Like जो mature thinkers होते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि वो बहुत tough और ambiguous situation को sort out करें, तो वो अपना experience use करते हैं और इसके साथ साथ reasoning को use करते हैं. Post-formal thought is also characterized by a shift from polarization, right versus wrong, logical versus emotion, mind versus body, to an integration of concepts. Warner ने conceive किया cognitive development with thought को in adults as progressing through stages of 5 steps. Warner Shry, who believes that intellectual development proceeds in relation to people's recognition of what is meaningful and important in their own lives. The 5 stages of Shry's theory chart a series of transition from what I need to know, ये मुझे क्या चाहिए, acquisition of skills in childhood adolescence, through how I should use what I know, फिर हम किस तरह उन चीज़ों को, उस knowledge को use करें जो मैं जानता हूँ, acquisition of skills in childhood and adolescence, through how I should use what I know, मैं किस तरह यूज कर सकता हूँ जो मुझे आता है, इंटीग्रेशन ऑफ दीज स्किल्स इन अ प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, फिर टू व्हाई आई शुड नो, a search of meaning and purpose that culminates in the wisdom of old age. And then according to Warner, real life experiences are important influences on this progression. In sub steps में जो real life experience है वो बहुत important है. The sequence of stages in Warner's model of cognitive development is as follows. Number 1, acquisitive stage, childhood and adolescent. इस स्टेज में हम देखते हैं कि information और skills जो है उनको कैसे learn करना है. दूसरी स्टेज आती है achieving stage. Early 20s और late 30s के stage है. In the achieving stage, people no longer require knowledge merely for its own sake. सिर्फ अपने लिए knowledge नहीं gain करते, but they want to competent और independent होना चाहते हैं वो. फिर अपना बेस्ट करना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं जो उन्होंने अपने लिए बनाए होते हैं. फिर रिस्पॉन्सिबल स्टेज आती है, ये लेट 30s टू अर्ली 60s. इस रिस्पॉन्सिबल स्टेज में लोग कंसर्न हो जाते हैं अपने लॉन्ग रेंज गोल्स की तरफ, प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आ जाते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है फैमिलीज की, किड्स की, फिर एज एम्प्लॉय अपने कैरियर ओरिएंटेशन के लिए. फिर एग्जेक्टिव स्टेज आती है, यानी 30s और 40s थ्रू मिडिल एज. People in the executive stage are responsible for societal systems like governmental or business concerns rather than just family units. They need to integrate complex relationships on several levels. In reintegrative stage, late adulthood, older adults who have
let go of some involvement and responsibility, and whose cognitive functioning may be limited by biological changes, are more selective about what tasks they will expend efforts on. In this reintegrative stage, they think about the purpose of what they do. Then Robert Sternberg has proposed 3 aspects of intelligence: componential, experiential, contextual. The experiential and contextual जो aspects हैं वो develop करते हैं और become particularly important during adult. जो componential element है वो शो करता है कि कितना अच्छी तरह से लोग information को analyze कर सकते हैं, critically देख सकते हैं. The componential element is a critical aspect of intelligence. It tells us, ये लोगों को बताता है कि प्रॉब्लम्स को किस तरह अप्रोच करना है, उनको किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह क्रिटिकली देखना है, उसको किस तरह मॉनिटर करेंगे और रिजल्ट्स को किस तरह वैल्यूएट करना है. फिर है एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट, यानी हाउ पीपल अप्रोच नोवेल एंड फेमिलियर टास्क्स. किस तरह लोग नए नए आइडिया सोचेंगे, किस तरह एक्सपेरिमेंट करेंगे. अब एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट जो उसमें आपकी इनसाइटल एस्पेक्ट किया जाता है, यानी आप कितने क्रिएटिव हैं, कितनी नोवेल्टी से सोचते हैं. इट अलाउज पीपल टू कंपेयर न्यू इन्फॉर्मेशन विद दैट दे ऑलरेडी नो एंड टू कम अप इन अ न्यू वेज ऑफ पुटिंग फैक्ट्स टुगेदर. ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस ऑफ familiar operations like recognizing words facilitates insight because it leaves the mind free to tackle unfamiliar tasks like decoding new words. Here are the contextual elements in how people deal with the environment. The contextual element is the practical, real world aspect of intelligence. It becomes increasingly valuable in adult life as in selecting a place to live, of a field or work. It involves the ability to size up a situation and decide what to do, adapt to it, change it, find a new, more comfortable setting. Definition of adult maturity. किस तरह adult mature होता है? Maturity refers to a state that promotes physical and psychological well-being. Maturity वो state होती है जब individual psychologically और physically mature हो जाए और एक state of well-being में हो. In most instances, a mature person possesses a well-developed value system, an accurate self-concept, stable emotional behavior, satisfying social relationships, and intellectual insight. The easily cope with the demands of adulthood, mature individual is realistic in the assessment of future goals and ideas. According to White, maturity implies the ability to cope more successfully with life problems, increasing the effectiveness of our planning strategies, deepening our appreciation of the surroundings, and expanding our resources for happiness. एक किस तरह इंडिविजुअल इमोशनली स्टेबल होता है, वो किस तरह सोशल रिलेशनशिप को सेटिस्फाइडली एक्सेप्ट करता है, ये किस तरह सोसाइटी में मूव करता है एक्सेप्टेबल वे में, उसकी इंटेलेक्चुअली एबिलिटी कैसे इंप्रूव करती है, वो अपने रिलेशन किस तरह लेके चलता है, वो फ्यूचर प्रॉब्लम्स को किस तरह देखता है, फ्यूचर गोल्स को किस तरह देखता है, सारी चीजें उसकी मैच्योरिटी को असेस करती हैं. Here are Alport's 7 dimensions of maturity. According to Alport, in 1961, who postulates that maturity is an ongoing process best characterized by series of attainments on the part of the individual. We each feel that life has its share of obstacles that must be overcome, road blocks that require the development of problem formulation and decision-making abilities. Methods for dealing with life's failures and frustrations as well as accepting its triumphs and victories have to be devised if maturity is to be nurtured. Albert की नजदीक ये ongoing process है जो कि चलता रहता है. आप डिफरेंट चीजें लर्न करते हैं और जो कि आपकी मैच्योरिटी को इंप्रूव करती हैं. हर स्टेज ऑफ लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं जिनको बहादुरी के साथ फेस करना, अपने डिसीजंस खुद लेना और एक्यूरेट डिसीजंस लेना. फिर उसके साथ साथ जो लाइफ में फेलियर्स आते हैं, जो फ्रस्ट्रेशंस आते हैं, उनको एक्सेप्ट करना, अपनी विक्ट्रीज को एक्सेप्ट करना, ये सब मैच्योरिटी के साथ साथ होता रहता है. और अगर आप मैच्योरिटी नर्चर्ड है अच्छी तरह से तो आप ऐसा चीजों को अच्छे से फेस कर सकते हैं. एज इन इटसेल्फ इज नॉट अ गारंटी ऑफ मैच्योरिटी. एज फैक्टर जो है अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैच्योरिटी की गारंटी हो. तो कुछ 40 साल का आदमी है तो वो मैच्योर होगा एज कम्पेयर टू 20 ईयर्स पर्सन. एल्बर्ट has identified 7 specific dimensions of criteria of maturity. यानी उसने कहा कि 7 क्राइटेरिया है मैच्योरिटी का. नंबर 1 एक्सटेंशन ऑफ द सेल्फ, नंबर 2 रिलेटिंग वार्मली टू अदर्स, नंबर 3 इमोशनल सिक्योरिटी, नंबर 4 रियलिस्टिक परसेप्शन, नंबर 5 पोजेशन ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, नंबर 6 नॉलेज ऑफ द सेल्फ एंड एस्टैब्लिशिंग a unifying philosophy of life. The first criteria of maturity is self-extension. It requires that individuals gradually extend their comprehension to encompass multiple facets of the environment. The sphere of young child was primarily limited to the family, but over time the child becomes involved in various peer groups, in school activities, in clubs. स्टार्ट में क्या होता है, जब इंसान की जो जिंदगी का स्फीयर है वो सिर्फ फैमिली तक लिमिटेड होता है, स्कूल तक. उसके बाद पीयर्स आते हैं, स्कूल एक्टिविटीज आते हैं, क्लब्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं. इवेंचुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनता है विद ऑपोजिट सेक्स के साथ. वोकेशनल आप करियर में लोगों के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, आपकी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कुछ गवर्नमेंटल, कुछ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. तो इस तरह आपकी सेल्फ एक्सटेंड करती जाती है. ईच outlet provides the young adult with the opportunity to become involved in more meaningful personal relationships and to fulfill the need of sharing new feelings and experiences with others. यानी अब हर जो एक्सटेंशन है डिफरेंट रिलेशन के साथ, फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, पियर्स, वाइफ, किड्स, ये सब चीजें उसको एक अपॉर्चुनिटी देती हैं कि वो किस तरह एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाता है अपने इन सब नए रिश्तों में, किस तरह अपने सेल्फ को एक्सटेंड करता है. While refers to the foregoing process as the deepening of interests, in a series of case studies, he discovers most mature young adults tend to become engaged in educational, athletic, academic pursuits. Each requires the extension of the self and the ability to experience involvement of some sort. Yet, like Albert, White maintains that merely being involved in something doesn't necessarily imply satisfaction of happiness. कि Albert की तरह White ने कहा कि सिर्फ इन्वॉल्व हो जाना आपको सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस नहीं दे सकता. मैच्योरिटी इज मेजर्ड बाय वंस एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी. आप सोसाइटी में कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. मैच्योरिटी इंप्लाइज मूवमेंट अवे फ्रॉम अ स्टेट इन विच इंटरेस्ट आर कैजुअल क्विकली ड्रॉप्ड एंड परस्यूड ओनली फ्रॉम मोटिवेट that do not become identified with the advancement of the interest or activity. True self-extension is a state in which a sense of reward comes from doing something for its own sake. In other words, maturity is promoted when the activity undertaken has true significance to the self. फिर है सेकंड स्टेज रिलेटिंग वार्मली टू अदर्स, कि हम कितना दूसरों के साथ रिलेट करते हैं खुद को. एल्बर्ट सेकंड क्राइटेरियन ऑफ मैच्योरिटी इज द एबिलिटी टू रिलेट द सेल्फ वार्मली टू अदर्स, कि हम दूसरों के साथ कितना वार्मली एसोसिएट करते हैं, रिलेट करते हैं खुद को. एल्बर्ट मीन्स द कैपेसिटी टू बी इंटीमेट विद एज वेल एज कंपैशनेट टुवर्ड अदर्स.
How does one develop the capacity for intimacy? One of the more widely accepted interpretations of an adult psychological growth has been provided by Erikson. During early adulthood, mature psychological development is measured by the successful resolution of the stage known as intimacy versus isolation. Prior to this earlier adulthood, the individual was in the midst of an identity crisis, a struggle that reached its peaks during adolescence. Erikson stresses the idea that as a young adult, the individual is motivated to fuse this newly established identity with that of others. हम ये कह सकते हैं कि जो young adult है वो intimate होने के लिए ready होता है. इसका मतलब है कि ना सिर्फ वो commit करता है पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए, बल्कि वो मोटिवेट भी होता है कि उनको नरिश किया जाए. Most adults to satisfy intimacy through marriage. It is important to stress that intimate relationships other than sexual ones as possible. Individuals may develop strong bonds of intimacy and friendship that offer, among other features, mutuality, empathy, and reciprocity. Emotional security जो है is the third one. Although numerous dimensions of maturity can be grouped under this third category, Alcott maintains that 4 qualities in particular are important. Emotional security के लिए आपकी self acceptance जरूरी है, emotional acceptance जरूरी है, frustration tolerance और confidence सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए ये चीजें जरूरी है. सेल्फ एक्सेप्टेंस की एबिलिटी होती है जब इंसान फुली अपनी सेल्फ को एक्सेप्ट करता है, अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करता है. मेच्योर पीपल रियलाइज दैट दे कैन नॉट परफेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट. हर मेच्योर इंसान जानता है कि वो हर सूरत पूरी तरह से कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है. उनको अपना पोटेंशियल पता होता है. टोटल सेल्फ एक्सेप्टेंस रिक्वायर्स एक्सप्लोरिंग एंड एक्सेप्टिंग वंस वीकनेस. टोटल सेल्फ एक्सेप्टेंस से मुराद जब आपको अपनी पॉजिटिव पॉइंट्स तो पता है, लेकिन आप एक्सप्लोर करें और एक्सपेक्ट करें कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं. फिर मेच्योर जो इंडिविजुअल है उसकी इमोशनल एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए. इमोशंस इसी तरह है जैसे नॉर्मल लाइफ में दूसरी चीजें चलती हैं. कई दफा ऐसा होता है दिस डायमेंशन मेच्योरिटी डू नॉट अलाउ इमोशन टू रूल देयर लाइव्स. लोग इमोशंस को इजाजत नहीं देते क्योंकि लाइफ पे रूल कर. येट एट द सेम टाइम दे डू नॉट रिजेक्ट इमोशंस एज बीइंग अ लाइन इन द नेचर. इसलिए कि वो लगा नहीं रह सकते तो वो उनको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हैं. तो अपनी इमोशनल एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि इमोशंस के बगैर हम कुछ भी नहीं. जहां हम रियलिटी ओरिएंटेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसी तरह इमोशनल एक्सेप्टेंस भी हमारे लिए बहुत जरूरी है. देन फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, अब आप इस काबिल हैं कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं कि बेहतरीन जिंदगी के लिए और मैच्योरिटी के लिए अपनी फ्रस्ट्रेशंस को बेहतरीन तरीके से डील करना आना चाहिए, उसको एडमिट करना आना चाहिए. यही एक हेल्दी लाइफस्टाइल है. The final dimension of emotional maturity is confidence in self-expression. Maturity in this respect implies spontaneity. One is aware of one's own emotions. हर किसी को अपने इमोशंस का पता होना चाहिए और उसको अपने एक्सप्रेशन पे कंट्रोल होना चाहिए. अगर हम इमेच्योरिटी की बात करते हैं तो इन सब चीजों से ऑपोजिट है, यानी टिमिड होगा, शाय होगा. Fourth one is realistic perception. Albert's fourth criterion of maturity is realistic perception. Quite simply, maturity in this sense means being able to keep in touch with reality without distorting the environments to meet individual needs and purposes. यानी इंडिविजुअल के पास एक ट्रू रियलिस्टिक परसेप्शन होनी चाहिए, वो रियलिटी को फेस कर सके, समटाइम्स जो कॉम्प्लेक्सिटीज पाई जाती है एनवायरमेंट में उसको अडॉप्ट कर सके और उसको एक्सेप्ट कर सके. द मेच्योर माइंड इज एबल टू परसीव द सराउंडिंग एक्यूरेटली. Alcott is not implying that the mature person doesn't choose any type of defense or coping mechanism. On the contrary, defense mechanisms becomes quite automatic for many of us and tend temporarily to elevate anxiety and frustration. Alcott's point is that the overuse or misuse of such mechanisms usually distorts one's perception of the surrounding. Defense mechanism जब यूज करते हैं तो अपनी एंजाइटी को और फ्रस्ट्रेशन को दबाने के लिए, तो Alcott कहता है कि ये आपकी परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करते हैं. लाइक डिनाइल अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड एक डिफेंस मैकेनिज्म जिसे सब जानते होंगे, तो हमारी जो रियलिटी ओरिएंटेशन है उसको डिस्टॉर्ट करता है. देन नंबर possessing some type of skills or competencies represent Alcott's fifth dimension of maturity. Unless one possesses some basic skill, it is virtually impossible to nature the kind of security for maturity to develop. While the immature adolescent may argue, I'm not good at anything, mature adults strive to develop whatever skills they feel they possess. Furthermore, skilled individuals are driven by a need to express their competencies through some type of activity. They identify with their work and display pride in the skills needed to produce the finished product. In this sense, task absorption and ego-relevant activities are important to physical and psychological well-being. आप में पोजेशन स्किल्स होनी चाहिए. बच्चे कहते हैं हम ये नहीं कर सकते. जो लोग होते हैं वो उन स्किल्स को सीखते हैं जो वो सीख सकते हैं और जिनको उनके सीखने की जरूरत होती है, उन सब स्किल्स को सीखते हैं और फिर उनको अप्लाई करते हैं. जब उनको अप्लाई करते हैं तो जब उनको एक सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है, जब लोग उनको कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, लोग उनकी तारीफ करते हैं, सोर्स ऑफ प्राइड होता है उनके लिए. तो स्किल्स को सीखना, उसको अप्लाई करना और उस पर कमांड हासिल करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सेल्फ नॉलेज इज द क्राइटेरियन नंबर 6. मोस्ट मेच्योर पीपल पोजेस अ ग्रेट डील ऑफ सेल्फ इनसाइट. अपना आप क्या है, अपनी नॉलेज होनी चाहिए, अपनी सेल्फ की इनसाइट होनी चाहिए. बहुत से मेच्योर लोगों को अपनी नॉलेज नहीं होती, उनको अपनी सेल्फ को पता ही नहीं होता है. अकॉर्डिंग टू Alcott, नॉलेज ऑफ द सेल्फ इन्वॉल्व्स 3 कैपेसिटीज. नोइंग व्हाट वन कैन डू. जब आपको अपना पता है, आपको अपनी नॉलेज है, तो आपको पता होगा आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते. लाइक कहते हैं ना कि व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कांट डू, एंड नोइंग व्हाट वन ऑट टू डू. ये सब चीजें पता हो जाती हैं अगर आपको अपनी नॉलेज है, आपको सेल्फ नॉलेज है तो. White 1966 believed that knowledge and stabilization of the self is one of the most important growth trends of young adulthood. In those enduring roles that are characteristics of adult life, more specifically, he states that as individuals modify their behavior in order to fulfill their roles as workers, marriage partners, and parents, for example, their experience beings to accumulate more and more selectively. जब आपको अपनी नॉलेज का पता होता है, आपको अपनी सेल्फ का पता होता है, तो आप बहुत से काम कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू वाइट हम ये भी कह सकते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप रोल्स कुछ चेंज भी कर लेते हैं. व्हेन यू आर अ मदर, योर रोल इज डिफरेंट. आप बहुत चीजें अपनी पर्सनालिटीज की खत्म कर देते हैं. When you are a partner, आप बहुत से कॉम्प्रोमाइज करते हैं जो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं होते, लेकिन आप सीखते हैं करना. These are all the qualities of a mature person. Then establishing a unifying philosophy of life is the last and the final criterion of maturity. By Alcott in the development of unifying philosophy of life. आपकी philosophy of life क्या? आपके ideas, आपके goals, आपकी needs, आपकी values. Since a mature human being is goal seeking,
such as synthesis, enables him or her to develop intelligent stage of life and to work towards implementing it. Mature people tend to view goals from a balanced perspective and are able to cope with failure if these goals are not met. यानी फिलोसफी ऑफ लाइफ क्या, उनकी आइडियाज क्या है, उनके आइडियाज क्या है, उनकी थॉट पैटर्न क्या है, फिर वो गोल सीकिंग एटीट्यूड होता है उनका. मेजर पीपल के कुछ गोल्स होते हैं और उस काबिल भी होते हैं कि उनको हासिल कर सकें, और अगर वो उन गोल्स को हासिल ना कर सकें तो वो उस फेलियर को भी आसानी से फेस कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट जो फेज ऑफ लाइफ है वो है मैरिज, जो कि इसी एडल्टहुड में हम फेस करते हैं. मोस्ट एडल्ट्स मैरी यूजुअली फॉर द फर्स्ट टाइम इन यंग एडल्टहुड, बट पीपल हैव बीन मैरिंग एट लेटर एंड लेट एजेस. तो बहुत से लोग अर्ली एडल्टहुड में शादियां करते हैं, लाइक दैट इज फ्रॉम 45 इयर्स. बहुत से लोग लेट भी करते हैं, मिडिल एडल्टहुड में करते हैं. इन 1988 द मीडियन एजेस ऑफ फर्स्ट टाइम bridegrooms was 25.9 and first time brides 23.6 years, compared with 24.7 and 22 years respectively in 1980. Studies done from the 1950s found that married people were happier than singles. Either marriage brought happiness or happy people tended to marry. ये एक क्वेश्चन है. 1950 में रिसर्च की गई जिसके मुताबिक मोस्टली लोग जो मैरिड थे वो खुश थे. तो क्या ये वो लोग थे जिन्होंने शादी की और खुश हुए, या उनकी हैप्पीनेस लेवल इंक्रीज किया, या हैप्पी पीपल ने जल्दी शादी? इट इज अ क्वेश्चन. मैरिज एक ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जब आपको अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए एक पार्टनर मिल जाता है. उस शख्स के साथ आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है. मोस्टली इन आवर कल्चर वी एक्सपीरियंस लव एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीलिंग्स व्हिच वी वांट टू शेयर विद द opposite sex partner. The best and the legal way is marriage. In one study, 2,000 adults around the country, for example, married men and women of all ages reported more satisfaction than people who were single, divorced or widowed. The happiest of all were married people in their 20s with no children, especially women. Young wives reported feeling much less stress after marriage, while young husbands, although happy, said they felt more stress. Apparently, marriage was still seen as an accomplishment and a source of security for a woman, but as a responsibility for man. अब हमने जब बात की कि जो यंग एज की लड़कियां होती हैं वो शादी के बाद ज्यादा खुश रहती हैं, लाइक बट अनलाइक जो मेल्स होते हैं वो जरा स्ट्रेस फील करते हैं, लेकिन वो खुश होते हैं. उसमें रीजन आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्योंकि हमारे कल्चर्स में मोस्टली जो पूरा के पूरा घर संभालना है मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेल्स करते हैं. सेक्स डिफरेंसेस इन मैरिज. विमेन एंड मेन फील डिफरेंटली अबाउट मैरिज इन अदर रिस्पेक्ट्स. विमेन सी मैरिज एज अ प्लेस टू एक्सप्रेस एंड talk about emotions. They consider the sharing of confidence as a measure of intimacy. Men, however, define intimacy differently. They tend to express love through sex, giving practical help, like helping her with the household chores, doing things together, just being together. As a result, men often get more of what is important to them, since women do the things that matter to men. Many men do not feel comfortable talking about feelings, or even listening to their wives talks about their feelings, and this leaves the wives feeling dissatisfied. शादी दोनों के लिए डिफरेंट है. लड़कियों के लिए डिफरेंट है, लड़कों के लिए डिफरेंट है. लड़कियों के लिए इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है. कई दफा ऐसा होता है कि लड़कियां या वाइफ जो फीलिंग्स बता रही होती हैं, द मेल्स आर नॉट इंटरेस्टेड, तो वो डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग आ जाती है. जो मोर मैरिड पीपल हैं वो अपने आप को बहुत हैप्पी समझते हैं, बहुत खुश तस्वुर करते हैं. उसके बाद मैरिज और हेल्थ. Marriage is a healthy state. Married people tend to be healthier than those who are separated, divorced and widowed. Married people have fewer disabilities or chronic conditions than limit their activities. When they go to the hospital, their stays are generally short. कुछ रिसर्चेस की गई मैरिज और हेल्थ को लेकर, तो देखा गया जो लोग हेल्दी हैं वो मोस्टली दे आर मोर मैरिड पीपल. उनका हॉस्पिटल्स में स्टे कम है, उनकी कंडीशन ज्यादा क्रॉनिक नहीं है, उनको बहुत कम डिसेबिलिटीज हैं. मैरिड लोग ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं. फिर पर्सनैलिटी फैक्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैरिटल एडजस्टमेंट में. जो न्यूली मैरिड कपल होता है उसको एक दूसरे को एडजस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी है, उसका अपना एक सिचुएशन को डील करने का तरीका है. कुछ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बहुत इजीली एक रिलेशनशिप को बिल्ड करती हैं, जबकि कुछ नहीं कर सकती. जैसे कि इमोशनल मैच्योरिटी, ये बहुत जरूरी है. सेल्फ कंट्रोल, एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट अफेक्शन, दूसरों की केयर करना, दूसरों की परवाह करना, अपने इमोशन से कंट्रोल होना, इमोशनल मैच्योरिटी होना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी मैरिटल एडजस्टमेंट में. ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 10. इसमें हमने बात की अ न्यू स्टेज ऑफ लाइफ, अर्ली एडल्टहुड. मैच्योरिटी कितना गेन की जाती है. एल्बर्ट फिलिप मैच्योरिटी को हमने 7 स्टेजेस में डिवाइड किया. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं. फिर हमने बात की किस तरह जब हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, तीसरे स्टेज में मूव करते हैं तो हम मैच्योरिटी गेन करते हैं. फिर एट द एंड हमने बात की अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ एनी इंडिविजुअल्स लाइफ, मैरिज. हमने डिस्कस किया मैरिज को कि मैरिज किस तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी जिंदगियों में. मोस्टली जो लोग मैरिड हैं वो खुश हैं, उनकी सेहत अच्छी है. पर्सनैलिटी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक मैरिज को सक्सेसफुल बनाते हैं. आपका सेल्फ कंट्रोल, आपका इमोशनल सिक्योरिटी, आपका केयरिंग होना, आपका इंटेलिजेंट होना, आपका सिचुएशन को समझना, आपकी मैच्योरिटी, ये सब फैक्टर्स हैं जो एक मैरिज को सक्सेसफुल बनाती हैं. इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.